Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. I hope that you guys must be good and healthy. So in this video I'm going to teach you what had to. Yes, of course, last time I taught you have to and has to, and I also told you the difference between has to and have to, and it was very easy to understand about both of them. But in this video I will tell you about had to, and it is the past of has to or have to. And you must watch full video, means you will get to know about how to make the sentence, because sometime you can say that it is little bit tricky because it is the past. So you must be aware that what would be the negative and interrogative, and which sort of variation will be applied. So this sort of information you must have. So still I would say to you that if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you will get the notification of my video. So what do you think? Let's begin it. Guys, now you can see I have written definition as well and formation as well, and with the help of both of this I will make you understand. मैं आपको समझाऊंगा कि how you can make the sentence of had to, कि आप किस तरीके से had to के sentence बना सकते हैं. It is very easy, and had to is also semi molar verb. ये भी एक semi molar verb है. But one thing I would like to tell you, yeah, I committed just only one mistake. Basically ये past का है. If you're gonna watch my one video which was taught last time, has to and have to, मैंने recently एक video upload करी थी related to has to and have to, and I also told the difference between both of them. मैंने उसमें दोनों का difference बताया था. It was also semi modal verb, but the point is that it was in the present and it is the past. Are you getting my point? ये past है और वो present था. So I would like to suggest you that please watch that one video as well of has to and have to. Then you will get the more idea. And I will also share the link in the description. Then you will be able to find out easily. Fine. So now we are going to move to our lecture had to. It talks about, ये बात करता है strong compulsion, strong necessity and strong obligation. Now I will make you understand in बहुत ही easy way में मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग तो कंपल्जन है बट पास की है. जैसे कि आप ये कह रहे हो कि मैं स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे अपनी नानी के घर जाना था. इट वॉज लाइक कंपल्जन, आपकी मजबूरी थी. आई कुड नॉट गो स्कूल. यहाँ पे आप ये सेंटेंस पास का यूज़ करोगे, कुड यूज़ करोगे. एंड इवन तो यू कैन से आई डिडंट गो स्कूल, आई डिड नॉट गो, मैं स्कूल नहीं गया था बिकॉज आई हैड टू गो. Because I had to go Nani's house, like grandmother's home, like Nani's home. In this way you can say. ठीक है, इस तरीके से आप ये सेंटेंस बनाओगे जिसमें स्ट्रॉन्ग कंपल्जन है. और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की बात करते हैं तो यू कैन से कि आई कुड नॉट कम इंस्टीट्यूट अर्ली, आई कुड नॉट कम, क्योंकि आप यहाँ पे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप ये कुड नॉट यूज़ करोगे या डिड नॉट यूज़ करोगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम. बट सम टाइम यू कैन यूज़ सिंपल, कि आप कभी कभार एक अफर्मेटिव का यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आई कुडंट कम अर्ली टू द इंस्टीट्यूट बिकॉज आई हैड टू गो टू द पेट्रोल पम्प. इट वॉज वेरी नेसेसरी, कि आपके लिए वो नेसेसरी था कि मैं इंस्टीट्यूट जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मुझे पेट्रोल पंप जाना था फॉर रिफिलिंग, यू कैन से. ठीक है, यहाँ पे आपकी नेसेसिटी की बात होती है जो कि आपके लिए ज़रूरी था. आई हैड टू डू दैट, मुझे वो करना था. फाइन. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, लाइक आई did not come to meet you, मैं नहीं आया था तुमसे मिलने because I had to go to perform नमाज, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने जाना था, मुझे नमाज अदा करने जाना था. In this way it is obligation. ठीक है यार, you did not, you shouldn't have misbehaved. You had to respect your elders. You had to respect maybe your father. यानी आप ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, यू शुडंट हैव मिसबिहेव, आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी थी. यू हैड टू रिस्पेक्ट योर फादर. इन दिस वे यू कैन मेक द सेंटेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे आपकी जो ऑब्लिगेशन है, जो फ़र्ज़ है, वो आप सेंटेंस यूज़ करते हो. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन फॉर्मेशन की तरफ जाऊँगा. देयर इज़ सम चेंजेस. जैसे कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव, अगर मैं अफर्मेटिव की बात करता हूँ, सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कि इसमें हैड टू ही यूज़ करना है इंक्लूडिंग फर्स्ट फॉर्म. इट इज़ क्वाइट ईजी.
ठीक है, इसमें हैड टू। बट व्हेन यू विल मेक द सेंटेंस इन नेगेटिव, जब आप नेगेटिव में बनाओगे तो यहाँ पर आप डिड नॉट और हैव टू लगाते हो। You can ask why we are using have to, like why we are not using had to, because we have already used did. हमने यहाँ पर पहले से ही second form use कर लिए did, so that's why again we will not use, we will use first form. The first form of have and had and third form is had. ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे have to use कर रहे हैं, and same situation will be for interrogative as well. Did plus subject, have to verb first form object. Now I can tell you more sentences that how you can make, like अगर मैं कहता हूँ simple sentence, I had to talk to you, मुझे तुमसे बात करनी थी. Why didn't you come to meet me? I had to talk to you. क्यों नहीं आया तुम मुझसे मिलने? मुझे तुमसे बात करनी थी. In this way you guys can make the sentence of had to. और सेंटेंस बता देता हूँ, नेगेटिव के बता देता हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंस दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. लाइक आई हैड टू टॉक टू माई टीचर बिकॉज I was not present yesterday. You can say I have made very lengthy sentence कि मुझे अपने दोस्त से, आई होप यू मस्ट बी एबल टू सी प्रेजेंट येस्टरडे, मुझे अपने टीचर से बात करनी थी क्योंकि मैं कल प्रेजेंट नहीं था. कोई भी वजह हो सकती है, उसको टीचर से बात करनी थी. ये भी पास की बात कर रहा है. सिंपल. आप और सेंटेंस कह लो कि आप और सिचुएशन में बताऊं कि मुझे अपने दोस्त से मिलना था क्योंकि मुझे उसके साथ कहीं जाना था. आई हैड टू मीट माई फ्रेंड्स बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर विद हिम. आपने हैड टू की सिचुएशन लगा ली. और नेगेटिव में कह सकते हो कि यार तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना था, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना था क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब था. सपोज यू कैन से योर थॉट वॉज नॉट फाइन सो यू डिड नॉट हैव टू ड्रिंक कूल वाटर. यू कैन से योर थॉट वॉज नॉट फाइन, तुम्हारा गला जो था वो ख़राब था. इट वॉज नॉट फाइन सो यू डिड नॉट हैव टू ड्रिंक कूल वाटर. यू डिड नॉट हैव टू ड्रिंक कूल वाटर, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना था. इन दिस वे आप ये सेंटेंस बना सकते हो. और इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हो. वेयर डिड यू हैव टू गो, वाई यू वर इन हरी, कि तुम्हें कहाँ जाना था. वेयर डिड यू have to go, where did you have to go, why were you in hurry, क्यों तुम जल्दी में थे. you are talking about past. ये जो situation थी ये past की थी. so that's why you can use the sentence of had to. If you are asking me to make multiple sentence like I had to perform namaz, I had to meet my friend, I had to go outside, I had to eat burger, मुझे बर्गर खाना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना, फला फला फला, in this way. But one more thing I am telling you which is very interesting and which is very useful for you guys, which is state. I always talk about state in every structure. मैं हमेशा state की बात करता हूँ हर structure में. state की sentence जैसे कि आप बना सकते हो कि I had to be doctor. Suppose I'm giving you situation. मैं टीचर नहीं बन सकता था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था. I could not be a teacher because I had to be a doctor. Are you getting my point? कि जैसे कि आप ये बोल सकते हो यार मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट में होना था. You say this sentence. So यार I could not come to meet you because I had to be in institute. I had to be यहाँ पे आप लगाओगे. या you can say I had to go institute is something else. But यहाँ पे आप जैसे कि मुझे वहाँ होना था, I had to be there. मुझे डॉक्टर बनना था, आई हैड टू बी डॉक्टर. मुझे पॉलिटिशियन बनना था, यू कैन से आई हैड टू बी पॉलिटिशियन. और इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यार हम पिकनिक पे जाते हैं मगर तुम्हें बीमार नहीं होना था. सपोज तुम्हें बीमार नहीं होना था, यू डिड नॉट हैव टू बी इल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यार तुम्हारा बुखार नहीं होना था. सपोज वी से समटाइम यार तुम्हें बुखार नहीं होना था तो हम पिकनिक पर चल लेते. यार यू डिड नॉट हैव टू हैव. यहाँ पर ये बुखार वाली सिचुएशन जो है ये हैव की आ जाती है. जैसे कि आई एम मेकिंग द सेंटेंस ओवर हियर, यू डिड नॉट हैव टू हैव फीवर. आई होप यू मस्ट बी एबल टू सी द सेंटेंस कि आप देख सकते हैं सेंटेंस यू डिड नॉट हैव टू हैव फीवर. इसमें आपने ये लाइक तुम्हारे पास गाड़ी होनी थी, तुम्हारे पास गाड़ी होनी थी. यू हैड टू हैव अ कार.
ये तो नेगेटिव में बना है, सो यू डिड नॉट हैव टू हैव, इस तरीके से। और इन सेंटेंसेस में वी डू नॉट यूज़ वर्ब, हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब मीन्स एक्शन, जो यहाँ पे हुआ है। ये सेंटेंस एक्शन के लिए होते हैं, ये आपके स्टेट जो कि नॉन फिजिकल एक्शन होता है, बेसिकली नॉन फिजिकल मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मुझे वहाँ होना था, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज सेंटेंसेस, आई हैड टू बी देयर, आई हैड टू बी डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना था, और या मुझे डॉक्टर होना था, बनना था। यू कैन से आई हैड टू बिकम डॉक्टर, आप ये भी कह सकते हो। और इस तरीके से आप ये भी सेंटेंस कह सकते हो कि you had to have bike, we could you had to have bike so we could easily go to see you. Yeah, you can make these sort of sentences. I hope you must have understood now, and you can use in negative as well, and interrogative it's quite easy, it is same, but we will not use verb like action verb. इसमें हम एक्शन वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव गॉट अबाउट हैड टू, इट इज़ क्वाइट ईजी। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन सो मेनी सेंटेंसेस, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बोल दिए हैं, एंड आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव गॉट फाइन। एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी आई हैड स्पोकन बिफोर, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप हैव टू और हैज़ टू की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन below. Fine. So inshallah we'll meet in next video where you might be taught another things. But till over here I would say take care of yourself. Allah Hafiz. And still if you haven't subscribed my channel, and like I would say again, I keep saying again, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. And you can share my videos to your friend as well. And if you have any questions, so you can comment below. So Allah Hafiz guys, we'll meet in next video.